Okay, this is the last bit in previous lecture. So next title is nothing but Argand's diagram. Argand's diagram. Okay, in complex plane. So what is meant by Argand's diagram in a complex plane? So in that case here, it is important that one minute. I will take mic for that one. Yes, okay, now it is right. So here, in case of Argand's diagram, what is important in that Argand's diagram is here now. As we know that if any point in a Cartesian coordinate system, means suppose the point 2, 3, then how to locate the position of point P of 2, 3 in Cartesian coordinate system, we know very well. What does this mean? It is nothing but this 2 is present on x-axis and 3 is present on y-axis. So we draw the graph for that one. It means here a 0, then here 1, there is 2 is there. Here it is 1, it is 2, and it is 3 is there. So we can say that this point P of 2, 3 is present at this position, P of 2, 3. So we join them, and we can identify or locate the position of the point P in Cartesian coordinate system or in XY plane is there. Okay, similarly, the name suggests here, Argand's is the name of mathematician which represents the complex number in XY coordinate system is there. So because of that his name, it is called as the Argand's diagram. मतलब क्या इसमें क्या हो गया? Actual जो complex number है, जैसे for example, there is a complex number 3 plus 2i is there. So this complex number is also represented on x-axis and y-axis, means in terms of Cartesian coordinate system. So for this representation, the name is nothing but Argand's diagram is there. So what we can say that here, here this is the complex number 3 plus 2i. In that one, 3 is the real part and 2i is the imaginary part. So Argand makes a graph for that one. That 3 is a as there are two parts in that one is the real and other is the imaginary. So he can separate them. This real part is represented on x-axis, so it is called as the real axis, and this imaginary part is present on y-axis, so it is said to be the imaginary axis. So this is all about this one. So this 3 is nothing but it is a real. It is represented on x-axis. So here it is something like 0. It is 1. It is 2. It is 3 is there. Similarly, 2 is nothing but 1 and 2 is there. So this complex number 3 plus 2i is denoted by the point P of 3, 2. This one. So this representation of complex number is known as Argand's diagram in this one. So what is meant by Argand's diagram? Argand's is the name of mathematician. How it इससे क्या करने वाला है इसमें? It represents the complex number in which plane in Cartesian coordinate system. So it is called as the Argand's diagram is there. Okay, जैसे कि for example अब अपने को कैसा आएगा इसमें examples. For example कैसा आएगा this one. अब इसमें questions कैसा आएगा कि represents the complex number. There are certain complex numbers are given to us. Something like the first complex number. We can write here z is equal to 2 plus 3i. Second complex number minus 2 plus 3i. Third complex number minus 2 minus 3i. Fourth complex number 2 minus 3i is this one. So the question asked here represents the complex number by using Argand's diagram. मतलब Argand diagram का यूज करके एक कॉम्प्लेक्स नंबर को अपने क्या करने का है, रिप्रेजेंट करने का है. तो वेरी सिंपल, वी कैन रिप्रेजेंट वेरी वेल. So this part is the real part. This part is real part, so it is represented on x-axis, and imaginary part is represented on y-axis. So because of that, this axis in complex number is said to be the real axis, and in complex number y-axis is said to be the imaginary axis. बस इतना ही डिफरेंस है. जो अपना x-axis है, वो complex number में real axis. Why it is real axis? Because we represent the real part on that axis. So because of that, it is said to be the real axis. Now this is an y-axis. On that y-axis, we represent the imaginary part. So because of that, it is said to be the imaginary axis of that one. So how to represent?
पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3i तो सबसे पहले यहाँ पे 0 1 2 इज देयर, सबका सब ये सेम लिया अपन, ये भी कितना 1 और 2 इज देयर, देन कम टू नेगेटिव साइड, इट इज नथिंग बट -1 -2 इज देयर, come to negative side, it is nothing but -1 -2 is there. First we represent this complex number. This complex number means here 2 is present on x-axis, so it is this one, and 3 is present on y-axis. So you can another take a point. So it is 2 is present on x-axis, 3 is present on this one. So this is the complex number 2, 3. So 2 + 3i is actual complex number. This complex number is represented by a point in a plane. ये एक्चुअल कॉम्प्लेक्स नंबर है, मगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने क्या करे एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट के हिसाब से दिखाए। वही बीट का नाम है आर्गन्स डायग्राम बाय अ पॉइंट इन अ प्लेन। मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्स वाई प्लेन में पॉइंट के हिसाब से दिखाना, रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ पॉइंट इज हियर। आप अगर से p ऑफ 2, 3 लिख दिए तो कोई भी बोल सकता कि यहाँ पे ये 2, 3 मतलब इट इज नथिंग बट 2 + 3i is there, because 2 is the real part and 3 is the imaginary part of that one. Okay, now next one. How to represent -2 + 3i here? So now, how to represent -2 + 3i? We know that we know the position of the coordinates. सबको मालूम है। पहला plus, then afterward minus, then afterward minus is there, and then last one is the plus is there. So यहाँ पे -2 + 3i मतलब x का -2 और y का कितना 3 आया, मतलब ये पॉइंट कहां पे प्रेजेंट है, यहाँ पे दिस वन, दिस पॉइंट we name it the q is there. What is the point here? -2, 3. So it is the second point. If you are interested to join with the origin, इसको अपन origin से join कर सकते हैं, this one, इसमें origin से join कर सकते हैं, this one, okay. Now the third bit is the third complex number is the -2 - 3i. Here the real part is minus, imaginary part is minus, so we can predict here this part is present in the third quadrant, है ना। देखो कैसा दोनों प्लस है पहले क्वाड्रेंट में, यहाँ पे एक माइनस, रियल पार्ट माइनस, इमेजिनरी पार्ट प्लस, तो कहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में। देन यहाँ पे दोनों माइनस है तो कहाँ पे आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब कैसा, रियल का -2 और इसका कितना -3 इज देयर, सॉरी रियल का -3 और इमेजिनरी का -2, तो पॉइंट यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, इसका नाम देंगे अपन r, -2, -3 is there. Join with the origin, very simple one. Similarly, how to represent this complex number? By using the sign. Sign important है। 2 - 3 मतलब रियल पार्ट प्लस है, इमेजिनरी पार्ट माइनस है, तो ये कहाँ पे आएगा, ये आएगा प्लस और माइनस, मतलब इट कम्स इन द फोर्थ क्वाड्रेंट इज देयर। तो फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब रियल पार्ट 2 और इमेजिनरी पार्ट इज नथिंग बट -3. So it is located in this one, P, Q, R. Name it is a point S2, -3 is there. So this is the representation. Very simple bit is there. Only you have to represent the complex number in terms of xy plane is there. Very simple one. कोई भी complex number को अपन represent कर सकते हैं। इसमें important क्या है? According to their sign we can represent this. मतलब according to sign मतलब दोनों अगर से प्लस है, रियल और इमेजिनरी, तो कहाँ पे आएगा, पहले क्वाड्रेंट में। एक माइनस और एक प्लस रहा तो कहाँ पे आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। मतलब दोनों माइनस रहा तो कहाँ पे आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, और एक प्लस और एक माइनस रहा तो कहाँ पे आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इट इज इंपॉर्टेंट इन दैट वन, इतना पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन क्या कर सकते हैं, एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और सच रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डेफिनेशन इज दैट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय अ पॉइंट इन अ प्लेन is called a Argand's diagram. कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि हम पॉइंट के द्वारा xy प्लेन में दिखाते हैं तो वो जो दिखाना जो रिप्रेजेंटेशन है, सच रिप्रेजेंटेशन is called as the Argand's diagram is that one. So in Argand's diagram what is important here? In Argand's diagram important is that their sign. साइन के हिसाब से पॉइंट अपन लोकेट करेंगे। दोनों प्लस है तो पहले क्वाड्रेंट में, एक माइनस एक प्लस है तो सेकंड क्वाड्रेंट में, दोनों माइनस यदि है तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और एक प्लस माइनस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब तुम इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मैंने एक अगर कॉम्प्लेक्स नंबर तुमको दे दिया फॉर एग्जांपल, और इसको रिप्रेजेंट करो बोला, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर है z = 4 + 5y। इसको देखने के बाद कोई भी बोलेगा ये दोनों, चलो ये बहुत सिंपल हो गया, 4 - 5y, तो रियल पार्ट प्लस है, इमेजिनरी पार्ट माइनस है,
तो इसको देखते बड़ा बोलेंगे कि यहाँ का ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना। इसका कॉन्जुगेट मतलब क्या, z बार 4 + 5i, तो इसका कॉन्जुगेट क्या आया, 4 + 5 है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव मतलब रियल भी पॉजिटिव है, इमेजिनरी भी पॉजिटिव है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे आएगा, पहले क्वाड्रेंट में। ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और ये कहाँ पे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, like that. So by taking the sign we can predict very easily. -3 + 2i, रियल पार्ट नेगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, कहां पर आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना। माइनस प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और क्वाड्रेंट नंबर ऐसा आ गया। इसका कॉन्जुगेट बोलो, -3 और -2i, इसका कॉन्जुगेट कहां पे आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। व्हाई, रियल पार्ट भी माइनस है और इमेजिनरी पार्ट भी माइनस है, दोनों माइनस होने के कारण ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पर आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय अ पॉइंट इन अ प्लेन। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम xy एक्सिस में दिखा सकते हैं बाय यूजिंग द पॉइंट। सो दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एज द अर्गन्स डायग्राम इज देयर। तो अर्गन्स डायग्राम में इंपॉर्टेंट क्या है, जो xy एक्सिस है इनके थोड़े नाम चेंज हो गए। As real part is represented on x-axis, so this is called as a real axis. It is called as a real axis. As imaginary part is present on y-axis, so because of that, it is said to be the imaginary axis is there. So real axis and imaginary axis in terms of complex number is there. Only difference is there. जो अपना पहला x-axis है, वो complex number में क्या रहेगा, real axis, और जो अपना पुराना y-axis है, वो complex number में क्या रहेगा, imaginary axis. Because real part is represented on x-axis, so it is called as a real axis. Imaginary part is present on y-axis, so it is said to be the imaginary axis. I hope you got that one. Very simple concept is there. Okay, so these are all about this one. 4 - 5 है, इसका पॉइंट क्या रहेगा, 4, -5। इसका पॉइंट क्या रहेगा, 4, 5। इसका पॉइंट क्या रहेगा, -3, 2, और ये पॉइंट क्या रहेगा, -3, -2। तर साइन बघून सुद्धा आपल्याला याच्यामध्ये हे करता येईल, वेरी सिंपल वन। सो नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। ये कांसेप्ट अगर से समझ गए होंगे तो अगले तरफ जाएंगे। अर्गन्स डायग्राम में क्या करेंगे अपन, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को xy एक्सिस में दिखाएंगे। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसके साइंस, दोनों प्लस है तो पहला क्वाड्रेंट, 1 - 1 प्लस है तो सेकंड क्वाड्रेंट, दोनों माइनस है तो थर्ड क्वाड्रेंट, पहला प्लस दूसरा माइनस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। ये इंपॉर्टेंट है, बस बाकी कुछ नहीं। सो ये होगा पहला बिट। इसके क्वेश्चंस एक्सरसाइज में है, अभी खाली थ्योरी बता रहे हैं, यहाँ पे समझा के दे। ऑन द बेसिस ऑफ दैट थ्योरी वी सॉल्व द एग्जांपल इन एक्सरसाइज हियर। ओके, फर्स्ट यू अंडरस्टैंड द थ्योरी ऑफ दैट वन। नेक्स्ट बिट इज द सेकंड बिट इन द एंगल द मॉड्यूलस ऑफ z, मॉड्यूलस ऑफ z, मॉड्यूलस ऑफ z, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज द, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ z देखेंगे बाद में, नेक्स्ट देखेंगे अपन। तो मॉड्यूलस ऑफ z मतलब क्या, एकदम सिंपल है। कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z = 3 + 2i, इसका मॉड्यूलस मतलब mod z इज देयर। तो मॉड्यूलस ऑफ z इज नथिंग बट अंडर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट में स्क्वायर करने से हमेशा क्या होता है, ये होगा 2i का स्क्वायर, बट ऑलवेज 2 का स्क्वायर 4 और i का स्क्वायर सबको मालूम है। i स्क्वायर का मतलब तुम्हारे पास यहाँ पे जब भी अपन मॉड्यूलस निकालेंगे तो मॉड्यूलस में ये i नहीं आएगा। व्हाट वी टेकन हियर, द कॉन्जुगेट ऑफ दैट वन। इसका कॉन्जुगेट का मतलब, सॉरी, वी हैव टेकन द कोएफिशिएंट ऑफ इमेजिनरी पार्ट का कोएफिशिएंट, इसका स्क्वायर। सो फाइनली वी गॉट द कंडीशन इज नथिंग बट 9 + 4 that is equal to √13 is there. So it is the modulus of complex number. So while finding the modulus of complex number, what we have done here, देखो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जनरल बता दो। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x + iy, इसका मॉडुलस बताओ। तो mod z = अंडर रूट में क्या था, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, मगर इमेजिनरी पार्ट में किसका, कोएफिशिएंट ऑफ i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब कितना, y² इज देयर। ठीक है ना, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अपन मॉड्यूलस निकाल सकते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया -3 - 4i is there. What is the conjugate of this one? What is the modulus of that one? It is nothing but
रियल पार्ट का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस i का कोएफिशिएंट -4 का स्क्वायर, so it is finally -3 square 9 -4 square 16, 16 plus 9 25, out of this one is the 5. So it is a method of taking modulus of complex number is there. Okay, it is a method of taking the modulus of complex number. आ गया second bit, पहला bit हो गया Argand's diagram, you know very well about that one. Now second bit is the modulus of complex number. Okay, understand क्या करेंगे इसमें? कॉम्प्लेक्स नंबर अगर से a plus ib के फॉर्म में है तो इसका मॉड z कैसा लेंगे? अंडर रूट में रियल पार्ट a का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट में कोएफिशिएंट ऑफ i मतलब क्या b का स्क्वायर, बस फिर खत्म इतना करेंगे, ये होगा तुम्हारा मॉड्यूलस ऑफ z इज देयर, सेकंड बिट. So now we proceed to the third and very important bit of complex number. Is nothing but is said to be the argument. Argument, or it is also called as the amplitude of capital Z, मतलब complex number. Okay. So argument or amplitude of complex number we have to find here. It is an important bit. It is an important concept as far as complex number is concerned. So what is the meaning of that one? Argument और amplitude मतलब इसके लिए आपने को क्या करना पड़ेगा? इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग लिखना पड़ेगा. ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब कैसा? देखो जैसे फॉर एग्जांपल वेरी सिंपल कांसेप्ट है, ये अपना xy एक्सिस है, ये xy एक्सिस पे एक आधा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर अपन कैसे डिनोट करते हैं xy एक्सिस में? पॉइंट से. जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया p ऑफ a, b, तो इसका मतलब ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये पॉइंट p ऑफ a, b है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर कितना है? दैट इज इक्वल टू a प्लस ib के फॉर्म में है. एक्चुअली ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, मगर अपन इसको xy एक्सिस में कैसे दिखाते हैं? अपन इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में बाय अ पॉइंट के हिसाब से. p ऑफ a, b का मतलब है ये कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस ib. ओके, सो नाउ ये इसका ओरिजिन. तो सबसे पहले ज्योमेट्रिकल मीनिंग में ये देखो कि ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग में ये जो पॉइंट p है, ये पॉइंट p का डिस्टेंस ओरिजिन से जो है, the distance of the point p from the origin is called as the modulus of complex number. जो अभी अपन ने देखे ना modulus of z. So modulus of z is nothing but geometrical meaning क्या है कि modulus of z is nothing but it is the distance of the point from the origin. Point मतलब the distance of complex number from the origin. ये point से दिखाते हैं ना अपन complex number को, तो हम यहाँ पे point होने के कारण अपन क्या बोल रहे हैं? Mod z is nothing but it is the distance of that point from the origin. So how to find that mod z? Distance फॉर्मूला सबको मालूम है? Yes. इसे अकॉर्डिंग बोलो 0, 0. अभी जैसे निकाल देखो, ऐसे इससे आया था x2 minus x1 का स्क्वायर मतलब a minus 0 का स्क्वायर, y2 minus y1 का स्क्वायर, b minus 0 का स्क्वायर. तो एक्चुअल कितना आ गया ये? सेम, अंडर रूट ऑफ a square plus b square is there. So it is the geometrical meaning of modulus of z. तो modulus of z actual क्या है? It is nothing but it is the distance of point from the origin. Origin से वो point का distance मतलब modulus of complex number. रो कैसे निकालेंगे अपन? Distance फार्मूले से. Distance फार्मूला 10th में हो गया. क्या है फार्मूला? x2 minus x1 का स्क्वायर plus y2 minus y1 का स्क्वायर. So it is nothing but simply a square plus b square. So it is called the modulus of complex number. ज्योमेट्रिकल मीनिंग. अब अपने को जो देखने का था वो बिट पे आ जाओ. इट इज आर्गुमेंट ऑफ z और एम्पलीट्यूड ऑफ z. सो व्हाट इज आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड? सो आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड इज नथिंग बट इट इज द एंगल मेड बाय OP. ये जो है ना एंगल मेड बाय OP विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, दिस वन, और विद द x एक्सिस. इट इज कॉल्ड एज द आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ये जो थीटा है, जो एंगल तैयार हुआ, ये थीटा एंगल को क्या बोलेंगे अपन? आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना. एक्चुअल कैसी पोजीशन थी? ये पॉइंट p यहाँ पे था, है ना. ये पॉइंट p यहाँ पे था, ये आगे सरकते 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 यहाँ तक चला गया. तो जब ये यहाँ तक जाएगा तो इट मेक्स सर्टेन एंगल. वो सर्टेन एंगल का नाम क्या दिया अपन ने? थीटा. तो जो एंगल तैयार हुआ थीटा OP का x एक्सिस के साथ, तो दिस एंगल थीटा इज कॉल्ड एज द
argument, or sometimes it is also called as the amplitude of complex number. So we are interested to find out the angle of that one, and the angle is nothing but argument of amplitude. So how to find that angle? Very simple one. We have taken here what is the method of finding the angle? It is a formula theta is equal to tan inverse of y by x or tan inverse of b by a is there. It is the method of finding the angle of any complex number. Theta is equal to tan inverse of b by a is there. ओके ये भी नहीं समझ में आया होगा तो देखो अभी कैसा इसको डिराइव करेंगे अपन. जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एंगल थीटा निकालने का है, तो एंगल थीटा निकालने के लिए यहां से एक परपेंडिकुलर निकालो. ओके we first draw the perpendicular on x axis. Okay, now this is called as a m. Now this a is present on real axis, so distance of OM is nothing but small a. And now this PM is parallel to y-axis, and this is nothing but is the small b is there. This is small b is there. Okay. Now tell me, what is the formula for sin theta? Sin theta is nothing but opposite side upon hypotenuse. So what happens now? B upon mod z. What is the formula for cos theta? Cos theta is nothing but adjacent upon hypotenuse. So A upon mod z is there. Now what is the formula for tan theta? Tan is nothing but sin by cos, है ना. sin by cos करेंगे तो क्या होगा? ये mod z और mod z कैंसिल, सिर्फ कितना आएगा? b by a. But we are interested to find out angle theta. तो एंगल थीटा कैसे निकलेगा? tan इनवर्स ऑफ b by a से. ये मैंने डायरेक्ट फार्मूला बताया था, मगर यहाँ पे डिराइव करो. ये जो फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b by a ऐसा आया. इट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ argument or amplitude of complex number. So only you have to remember the formula here. Theta is equal to tan inverse of y by x. There is no need to remember for that one. It is the remember here the formula. What is the formula for finding argument? Argument or amplitude of complex number is nothing but theta is equal to tan inverse of b by a. It is the method of finding the argument or amplitude of complex number. समझ में आया कैसा है? एक बार अगर से नहीं समझ में आया होगा तो देख लो यहाँ पे. जर पुन्हा लक्षात आलं नसेल तर त्यांनी एकदा पुन्हा बघून घ्या बोर्डवर. व्यवस्थित समजून सांगायला बघा आता. हाउ इट कम्स, ये कैसा आया फॉर्मूला देखो एक बार. तो सबसे पहले ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, इट इज आवर ओरिजिन. Now there is a point P in complex is nothing but now अब थोड़ा अलग नाम दिया, पर समझो x y दे दिया. xy का मतलब क्या? तुम्हारा समझ में आना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? z is equal to x plus iy is there, and this complex number is represented by the point P of x comma y is there. In that one, x is a real one and y is a imaginary one. So okay, so this is point is nothing but P of x comma y is there. Now join the point P with the origin. जब हम point P को origin से join करेंगे तो ये हमें देगा मॉड्यूलस mod z, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन. सो mod z कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फार्मूले से x - 0 का स्क्वायर x स्क्वायर, y - 0 का स्क्वायर y स्क्वायर. ओके, वेरी सिंपल वन. नाउ इफ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दैट वन. नेक्स्ट पार्ट में क्या देखेंगे अपन? इसका एम्पलीट्यूड कैसा है, आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड. तो इसमें थ्योरी इंपॉर्टेंट है, बघा फक्त थ्योरी इंपॉर्टेंट है. थ्योरी समजली तर प्रॉब्लेम तुम्हाला मनाने करता है, इतना सिंपल है. तो थ्योरी अच्छे से समझ के लो, एग्जांपल तुम खुद से करेंगे, अगर अपन भी करेंगे देखो. सो हाउ टू फाइंड दिस वन? यहां से परपेंडिकुलर निकाले अपन ने, दिस वन कॉल इट इज द पीएम. नाउ दिस इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ m फ्रॉम o, एंड इज नथिंग बट ये जो है x और y. X is present on real axis, so distance is equal to, we have taken small x. Now this PM is parallel to y-axis, it is the imaginary part, so we have taken y. And the angle made by OP with the axis is nothing but theta, and that is we are interested to find out. ये angle theta, मतलब argument और amplitude निकालना है अपने को. तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले sin theta. बोलो sin theta का फार्मूला क्या? Opposite upon hypotenuse, मतलब PM upon OP, मतलब y by mod z. cos theta adjacent OM upon OP मतलब x by mod z.
एंड व्हाट इज tan थीटा? फार्मूला फॉर tan थीटा टेल मी नाउ, sin बाय cos। ये दोनों का अगर से डिवीजन लेंगे अपन तो मॉड जेड कैंसिल, कितना आएगा y बाय x। तो यहां से थीटा कितना मिला, tan इनवर्स ऑफ y बाय x इज देयर। सो अगेन द फार्मूला थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x इज देयर। ये दोनों फार्मूले सेम है ना, अलग-अलग नहीं है, दोनों में दो ही फार्मूले सेम आए। Here the difference is that here we have taken the complex number z is equal to a plus ib, और यहाँ पे अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर क्या लिए थे, z is equal to x plus iy। ये दोनों फार्मूले सही है, बट वी हैव टू चेंज द कॉम्प्लेक्स नंबर हियर। दोनों का फार्मूला सेम है। नाउ वी हैव प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट। उसके बाद आर्गुमेंट ऑफ z is denoted by arg of z and or amplitude of z is denoted by amp of z, है ना। तुमको अभी शॉर्टकट में ऐसे देगा, फाइंड arg of z, तो तुम बोलेंगे arg of z क्या है, तो arg of z is nothing but it is the argument of complex number means theta, means in finally in short मध्ये theta निकालने का। और इसको सिंपली एम्पलीट्यूड ऑफ z को अपन amp of z लिखते हैं शॉर्टकट में, मतलब एम्पलीट्यूड मींस थीटा ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। सो आई होप यू गॉट दैट वन, आर्गुमेंट में समझ में आ गया। और ये भी अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कांसेप्ट बता रहा हूं, ये कांसेप्ट अगर से समझेगा तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उस पे अपन आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं, और इसी पे ज्यादा क्वेश्चन जेईई में पूछने वाले हैं, आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड पे, इसलिए इसको अपने डिटेल में देखना पड़ेगा। देखो तो नेक्स्ट टाइटल लेंगे अपन इस पर, आर्गुमेंट ऑफ z इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। आर्गुमेंट of z means complex number in different quadrants, in different quadrants is there। next bit is, name of the bit is the argument। थोड़ा रफ लिखा मैंने, समझ में नहीं आ रहा है तो अच्छा लिखेंगे अपन, argument of z in different quadrant, अलग-अलग क्वाड्रेंट में तुम्हारा जो एंगल है अलग-अलग आएगा, ये तो सबको मालूम है। जैसे कि आप पहला केस लेंगे अपन, केस 1, ये इंपॉर्टेंट है जितना मैं बता रहा था थ्योरी। केस 1 समझो अपना पॉइंट जो है पहले क्वाड्रेंट में है, तो उसके लिए आर्गुमेंट मतलब थीटा कितना आएगा वो इंपॉर्टेंट है। तो केस 1 में क्या, इफ x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, दोनों ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, दोनों पॉजिटिव। ये भी मीनिंग समझ लो, x ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से ज्यादा मतलब पॉजिटिव, y greater than 0 मतलब we are talking about both are positive one। okay, so if x greater than 0 y greater than 0 comma then p of x comma y lies in पहले क्वाड्रेंट में रहेगा, पहले क्वाड्रेंट में lies in first quadrant। दोनों अगर से पॉजिटिव है तो उस टाइम पे पॉइंट p of x y कहां पे रहेगा, पहले क्वाड्रेंट में, ऑब्वियसली बात है। तो इसका कैसा आएगा तुम्हारा ग्राफ, ऐसा आएगा, ये पॉइंट P दोनों पॉजिटिव पहले क्वाड्रेंट में, इसका डिस्टेंस ओरिजिन से, सॉरी दिस वन ओरिजिन से डिस्टेंस, ये तुम्हारा मॉड z, और ये यहां से परपेंडिकुलर और इसका थीटा। तो इसका अगर से थीटा निकालेंगे तो इन दिस केस इसका जो थीटा रहेगा, ये सबको मालूम है, एक मिनट इसको अच्छे से बताएं और अच्छे से बताता हूं। देखो यहां पे ऐसा, ये सबको मालूम है, सबसे पहले यहां पे देखो, ये सबको मालूम है, इसकी रेंज सबको मालूम है। ये कितना रहेगा 0 डिग्री, ये कितना रहेगा 90 डिग्री और पाई बाय 2, ये एंगल कितना रहेगा 180 और पाई, 180 और पाई, ये कितना रहता तुम्हारा 270 डिग्री, या इसको तुम रेडियंस में बोलेंगे 3 पाई बाय 2 रेडियंस। और ये राउंड कंप्लीट करने के बाद ये कितना होगा 360 बोलो या फिर 2 पाई बोलो, दोनों का मीनिंग कैसा है, सेम है ना। ये तो तुमको मालूम है, ये है उसका डिग्री मेजर और ये है उसका रेडियन मेजर। इट इज कॉल्ड एज डिग्री मेजर, इट इज कॉल्ड एज रेडियन मेजर। एंगल को हम दो इसमें मेजर करते हैं, डिग्री और रेडियंस में, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, कोई भी डिग्री का तुम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर रेडियन का डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने तुमको बोल दिया 15 डिग्री मतलब कितना रेडियंस, तो तुम क्या करेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, रेडियंस को डिनोट करते हैं अपन
C means circular system. Okay, so 15 1 the 1, 15 1 the 1, 15 2 the 30. So it is nothing but pi by 12 radians. So जब भी डिग्री का कन्वर्जेंस रेडियन में करने का है तो क्या करेंगे अपन, वो नंबर को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, ये कंसेप्ट है अपने पेपर फर्स्ट में पहले चैप्टर में, वो देखेंगे अपन, मगर अभी आ गया तो भी बता रहा है यहाँ पर. उसी तरीके से ये कितना आ गया, पाई बाय 12. अब किसी ने बोला पाई बाय 12 रेडियंस मतलब कितनी डिग्री, तो उल्टा कैसे करेंगे, पाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय इसका उल्टा, यहाँ पे पाई बाय 180 करे तो यहाँ पे 180 बाय पाई डिग्री. सो पाई से पाई कैंसल, 12 का 12 कितना मिला, कितने बचे 6, 12 5 60, 15 डिग्री is there. So what is important in that one? While converting degree into radian measure, we have to multiply the number by pi by 180. And while doing conversion of radian into degree, multiply by 180 by pi. इन शॉर्टकट मराठी में बोलता, जेव्हा आपल्याला डिग्रीचा रेडियन मध्ये करायचा तर पाय बाय 180 ने मल्टीप्लाय करायचा, म्हणजे पाय आले पाहिजे, म्हणजे पाय येणार याच्यामध्ये, हे कॅन्सल होणार आणि पाय मध्ये येणार. आणि जेव्हा आपण रेडियनच्या डिग्री मध्ये करणार तर त्यावेळेस पाय कटले पाहिजे किंवा पाय गेला पाहिजे. तर पाय जाण्यासाठी आपण काय करते, 180 बाय पाय उल्टा, पाय पाय कैंसल है ना. हिंदी में डिग्री का रेडियन में करते समय पाई आना चाहिए और यहाँ पे रेडियन का डिग्री में करते समय पाई जाना चाहिए, मतलब पाई पाई कैंसिल. तो यहाँ पे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे. तो अपना कंसेप्ट ये था, वो तो छोड़ दो, चूंकि बताया मैंने साइड में, अपना मेन टारगेट ये है. तो ये समझ में आया, 90 डिग्री और पाई बाय 2 मतलब कितना, 90 डिग्री. तो क्या करेंगे, 90 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, ये 0 0 कैंसिल, 9 2 इज नथिंग बट पाई बाय 2 रेडियंस. उसी तरीके से 180 डिग्री या फिर पाई और 270 या फिर 3 पाई बाय 2 मतलब 270 डिग्री कन्वर्जन करने के बाद. और ये पूरा कंप्लीट चक्कर करने के बाद 360 डिग्री या फिर 2 पाई. तो जनरली रेडियंस में याद रखो, रेडियंस में ज्यादा यूज है अपने को. ठीक है, तो अपना मेन टारगेट ये था कि तुमको रेंज मालूम होना जरूरी है, किसकी कहां तक हद है ना, लिमिट मालूम होना जरूरी है. तो पहले क्वाड्रेंट की हद कितनी है, 0 से लेके 90 तक, उसके बाद में 90 से लेके 180, 180 से लेके 270 और 270 से लेके 360. इसका रेडियन बताओ पाई बाय 2, इसका रेडियस बताओ पाई, इसका रेडियस बताओ 3 पाई बाय 2, इसका रेडियस बताओ 2 पाई. तो शॉर्ट में, तो जब अगर से दोनों पॉजिटिव है तो कंसेप्ट क्या था यहाँ पे, हाँ, अब यहाँ पे x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, मतलब p यहाँ पे है दिस वन. तो इसका जो एंगल थीटा है, ये थीटा की जो लिमिट है ना, ये थीटा कहां तक निकलेगा तुम्हारा, थीटा की रेंज अपन 0 से लेके पाई बाय 2 तक रहेगा. थीटा लाइज बिटवीन 0 टू पाई बाय 2, इसका मीनिंग ऐसा है.